إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلهي لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام ويا ذي العزة التي لا ترام والصلاة على نبيك وعليه السلام فأنك السلام ومنك السلام وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو میرا اور آپ کا اکیلا رب ذوالجلال والاکرام ہے. وہ اللہ جو ہر عیبوں سے پاک ہے، جو ساری نمایاں خصوصیات کا مالک ہے، ہمیشہ سے بے مثال تھا، ہمیشہ سے بے مثال رہے گا، ہمیشہ سے با کمال تھا، ہمیشہ سے با کمال رہے گا. اس اللہ سبحانہ و تعالی، اس اللہ رب العزت کے لیے ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارے روزے، ہماری تراویح، ہمارا عبادتیں اور ہمارا جاگنا، ہماری زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں، اسے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے بعد تمام دنیا کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً جن کے ہم امتی ہیں، جو دنیا کے آخری سچے پیغمبر، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ اعلیٰ کی 16 اور 17 نمبر آیت کی تلاوت کی. میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی، ضلع بلہاری، کرناٹک، آپ کے سامنے دنیا کی حقیقت اور دنیا کی مذمت، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے بیٹھا ہوں. کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو صرف دنیا کا نشہ چڑھا رہتا ہے کہ میں دنیا کمانا، میں دنیا جمانا، میں دنیا میں نام کمانا، میں دنیا میں بڑا آدمی بن کو دکھانا، میں ایسی دولت چھوڑ کو جانا، میرے مرنے کے بعد بھی میری جورو بچے آرام سے پلنا. یہ نشہ ہم میں سے ہر آدمی کو لگے رہتا. میں جب تک زندہ ہوں، چاہے روڈ پر پکوڑے ڈالتوں کی، ترکاری بیچتوں کی، اتنے پیسے جمع کرنا کہ میرا خاص سائٹ رہنا، میری خاص بلڈنگ رہنا، کرائے کے مکانہ میں نہیں جینا. میں خاص پیسوں سے گاڑی خریدنا، ہر آدمی کے ایک خواب، دنیا کمانا، سائٹ لینا، گھر بنانا، گاڑی خریدنا، بیوی بچوں کے لیے بڑا بینک بیلنس چھوڑ کر جانا. خیر، یہ دنیا پرست انسان کی تمنا ہو سکتی ہے، لیکن ایک آخرت پرست، دین پرست، اللہ پرست انسان کی ایسی ہوس، ایسی تمنا ہرگز ہرگز نہیں ہوتی. اب جو لوگ دنیا کے نشے میں پڑے ہیں، دنیا کمانے جمانے کے پیچھے پڑے ہیں، آج میرا یہ عنوان عبرتناک ان کے لیے اسپیشل ہے. اور اس میں
मैं भी अपने आप को मुखातब रखता हूं, मैं भी शामिल हूं, आप लोग भी शामिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह आला की 16 और 17 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। ऐ मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह दे रहे हो, जबकि आखिरत की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन ठिकाना है। कौन बोल रहा है ये? हमारा खालिक, हमारा मालिक, हम ना पैदा करने वाला, हमारा क्रिएटर। वो कह रहा है कि मेरे बंदो, मेरे मोमिन बंदो, दुनिया के पीछे कहीं पड़ी, आखिरत की तमन्ना करो, आखिरत तुम्हारे लिए बेहतर ठिकाना है। सूरह हदीद की 20 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लह व ज़ीनतुन तफाखुर बैनकुम व तकासुर फिल अमवालि वल औलादि व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ मेरे बंदो, जान लो, ये दुनिया की जिंदगी खेल तमाशे की जगह है, ज़ेब व ज़ीनत की जगह है। और ये दुनिया की जिंदगी में इंसान एक दूसरे पर फख्र जताता है, माल में, औलाद में। मेरे इतने बच्चे, मेरा इतना माल, मेरे बच्चे बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले, मेरे बच्चे बाहर गांव में कमाने वाले, मेरे इतने सारे जायदाद, इतनी सारी बिल्डिंगें, इतने सारी गाड़ियां। लोग अपने माल पर फख्र करते हैं। अल्लाह कहता है कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी सिवाय धोखे के सामान के कुछ भी नहीं है। धोखे का सामान है। और इस दुनिया, ये धोखे की दुनिया अपने साथ खबर में कुछ नहीं ले जाता, उसे भी मालूम, सबको भी मालूम, फिर भी हिरिस। बाल पक गए, बूढ़ा हो गया, हड्डियां जवाब देने लगे, घोड़ों को नमाज पढ़ने नहीं आता, बैठ को नमाज पढ़ने वाला, फिर भी उसे माल चाहिए। तांगड़ा खबर में छोड़ लिया, जब ही गिना दिन लेक बैठा, अब की तब की, आज मरता की सबा मरता की, तो भी उसे माल होना, तो भी उसका जॉब भर को रहना, एटीएम कार्ड में फुल बैलेंस रहना। किसकी बात? बुढ़े की बात, जिसके बाल पक गए। बूढ़े लोगों की जब इतनी बड़ी ख्वाहिश है, तो फिर जवानों की कैसी नहीं रहती, जिनके सामने पूरी दुनिया पड़ी। अभी नौजवान, अभी शादी नहीं हुई या परसों शादी हुई, एक बच्चा, 2 बच्चे, उनके कितने नहीं अरमाना नहीं रहते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, समंदर में उंगली डुबो कर निकालने वाले आदमी की मिसाल देकर बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस, ऐ मेरे उम्मतियों, अगर कोई आदमी समंदर में उंगली डुबो कर निकाला, उसकी उंगली में जो एक कतरा पानी लगता है, यह सारी दुनिया की उम्र है, और उसके मुकाबले में सारा समंदर आखिरत की उम्र है। हम लोग वो एक कतरे को तरजीह दिए पड़े हैं, जबकि अल्लाह बोलता समंदर तुम्हारे सामने पड़ा है आखिरत की शक्ल में। ये दुनिया आलम फानी है, फना होने वाली दुनिया है। आखिरत आलम उक़बा है, हमेशा हमेशा का ठिकाना है। उस हमेशा के ठिकाने, उस आला जन्नत, उस आला मुकाम को छोड़कर फना होने वाली दुनिया, जिल्लत वाली दुनिया, मतलबी दुनिया के पीछे हम पड़े हैं। ये दुनिया कैसी मतलब की मालूम? जब तक जेब में 4 पैसा है, हर कोई पूछता है आप कैसा है। जब तक जेब में 4 पैसा है, हर कोई पूछता है हजरत आप कैसा है, खैर खैरियत हर कोई पूछती, जब तक जेब में 4 पैसे रहती। जैसे ही पैसे खाली, सलाम अलैकुम भाई बोले तब चल 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 आगे चल, अनजान मारता आदमी, पूछ को भी देखता नहीं। दुनिया के पैसे रहती ना, सलाम अलैकुम हजरत कैसे हजरत, अच्छे हैं क्या, भाभी बच्चे अच्छे हैं क्या, बीवी बच्चे, कारोबार अच्छा, ऐसा खैर खैरियत पूछता।
जिगर निकाल को बाहर रख रहा, इन्हें ने हमारी दुनिया में सबसे बड़ा हमदर्द करना, मतलब के वास्ते सलामा मारते रहता, बड़ा पैसे वाला, अगर मैं सलामा मारूंगा चाकरी करूंगा सब क्या तो मुसीबत आई तो खर्चा पूछत खर्चा देंगा। मतलब की दुनिया, मतलब से इंसान नजदीक आता, मतलब पूरा होने के बाद अनजान मारता। गरीब इंसान सलाम करे तो फटक जवाब भी देता नहीं। ऐसी दुनिया के पीछे पड़ी हम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से बयान फरमाते हैं कि ऐ अब्दुल्लाह इब्ने उमर, याद रखना ये दुनिया के जरिए, अपनी दुनिया के जरिए जिंदगी के मकसद को ना बनाना। ये दुनिया अल्लाह ताला हर एक के नसीब में लिख दिया, उसे कितनी मिलनी है, जितनी दुनिया तुम्हारे नसीब में मिलेगी उससे ज्यादा की तमन्ना न करना। अल्लाह जितनी तुम्हारे मुकद्दर में तुम्हारी भलाई के लिए लिखा रहेगा उतना ही तुम पाओगे। जब मां के पेट में इंसान 120 दिन मुकम्मल करता है, 4 महीने मुकम्मल करता है, 40 दिन पानी की शक्ल में, 40 दिन खून की शक्ल में, 40 दिन गोश्त की शक्ल में, 120 दिन मुकम्मल कर लिया। अल्लाह का फरिश्ता आकर उसकी तकदीर लिखता है, ये दुनिया में जाकर कितना दुनिया कमाएगा, कितना दुनिया गंवाएगा, कितनी दुनिया जमाएगा, कितना ये खाएगा, कितना ये पिएगा। सारी दुनिया की रोजी रोटी, सारी दुनिया के माल और मता, सारी मुकद्दर अल्लाह ताला उसके मां के पेट में लिख देता है। ऐ इब्ने उमर, जितना अल्लाह तेरी तकदीर में लिख दिया उससे बढ़कर एक लुकमा भी तुझे मिलने वाला नहीं, उसकी हिरिस नहीं करना, उससे कम भी तुझे मिलने वाला नहीं। जो खो गया उससे अफसोस नहीं करना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बुखारी के हदीस में बयान फरमाते, कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरिस सबील। ऐ मेरे उम्मतियों, तुम दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर या कोई अजनबी आदमी है। एक मुसाफिर चलते चलते एक रास्ते के नीचे थोड़ी देर आराम करता, थोड़ी देर आराम करता और फिर उठता, अपना बोरिया बिस्तर लपेटता, आगे बढ़ जाता। अल्लाह के नबी बोले, राह चलते उस अजनबी मुसाफिर की तरह दुनिया गुजारो। कुन फी दुनिया, तुम दुनिया में ऐसे रहो कान्ना का गरीब, कोई पहचानता ही नहीं तुम्हें, अजनबियों की तरह। जाते जाते थोड़ी देर आराम करे फिर निकल गए। लेकिन हमें नहीं, ये दुनिया चरे हमारे असला ठिकाना, ये दुनिया चरे हमारी असल जगह। जड़ा उतार ले को, खूंटा मार ले को, यहां जबरदस्ती बढ़ जाती है हमें। और दुनिया कमाने के नशे के पीछे हलाल नहीं देखते, हराम नहीं देखते, सिर्फ दुनिया से उसे मतलब रहती है। मोमिन कभी ऐसा नहीं करता। जो दुनिया परस होता है, जिसे आखिरत में अल्लाह का डर नहीं होता, जो अल्लाह के सामने हिसाब देने वाला नहीं होता, उसे हलाल हराम से तमीज नहीं होती, बस उसे दुनिया से मतलब होती है। लेकिन जो मोमिन होता है, जिसे आखिरत में हिसाब देना है, वो हराम से बचता है, हलाल को इख्तियार करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते कि ऐ मेरे उम्मतियों, अल्लाह ताला कुरान में कहता है, सूरह आल इमरान 185 नंबर आयत, फमन ज़ुज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। जिस आदमी को कयामत के दिन जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो सबसे बड़ा कामयाब हुआ। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया धोखे का साजो सामान है, ये दुनिया की जिंदगी धोखे की जगह है। हम लोग दिल लगाए बैठे इस दुनिया में। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी जिंदगी के बारे में बता दिया, अमारु उम्मती मा बैन सित्तीन इला 70। मेरी उम्मत की उम्र को अल्लाह ने 60 से 70 साल के बीच में कैद कर दिया। अरे पहले के जमाने के लोग जीते थे जी 600 साल, 700 साल, 800 साल, 900 साल। कौन पहले के जमाने के लोग जीते थे? 200 साल के बाद उनकी जवानी चढ़ती थी, बचपना गुजर खत्म होता था 200 साल के बाद। आज 15 साल में हमारा बचपना, 20 साल में जवानी का दहलीज, 40 साल अधेड़ उम्र, 60 साल बुढ़ापा खबर। अल्लाह के नबी कहते हैं
मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 साल के बीच में अल्लाह कैद कर दिया। अल्लाह हमना 60 साल जिंदगी दिया समझो। 15 साल हमारे बचपने में चले आती, होश संभालते संभालते लड़का बालिग होते होते 15 साल बचपने में अल्लाह लिखता भी नहीं तो क्या करया क्या नहीं करया, मरफूल कलम उन्हें नाबालिग बच्चा। 15 साल बचपने में चले गए, 8 से 7 घंटे सोता इंसान, 15 साल सोता अपनी 60 साल उम्र में। 15 साल बचपने में, 15 साल सोने में, आधी उम्र बचपने और सोने में निकाल दिया। 8 से 10 घंटे कमाता अपनी बीवी बच्चों के लिए, 15 से 20 साल कमाता अपनी बीवी बच्चों के लिए। 50 साल यहां चले गए, बचपने में, सोने में, कमाने में 50 साल यहां चले, बचे 10 साल। अगर वो अपनी बीवी बच्चों के लिए, खाने पानी के लिए, जरूरियात के लिए, पेशाब और तहारत के लिए रोजाना 4 घंटे अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए, खाने के लिए, जरूरियात के लिए निकालता है, तो 8 घंटे अपनी जिंदगी के सिर्फ बेकार कामों के लिए निकालता है, बचे 2 घंटे। रोजाना 5 वक्त नमाज पाबंदी पढ़िया, 1 घंटा इबादत करया तो अल्लाह ताला उसके 60 साल में टैली करे 2 साल इबादत के बंद। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, 60 साल की जिंदगी तुझे दुनिया में जीने के लिए दिया था, कैसी दुनिया गुजार के आया, क्या तू करके आया? 58 साल तेरे लिए दिया, 2 साल मेरी इबादत के लिए तुझे पैदा किया था। ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी बंदी, 58 साल में तेरा बचपना भी, तेरा सोना भी, तेरा कमाना भी तेरे बीवी बच्चों के लिए दिया, 2 साल मेरी इबादत के लिए सवाल किया, भला बता क्या वो 2 साल मेरी इबादत ढंग से करके आया नहीं आया? अल्लाह सवाल करे, क्या जवाब देंगे हमें? है हमारे पास वो 2 साल बराबर इबादत के हैं? नहीं है। 5 वक्त नमाज है हमारी जिंदगी में? नहीं है। वो नमाज के टाइम में भी कमाल बैठे रहती, दुकाना खोल लेगा हमें, नमाज आते रहती जाते रहती, यहाँ कैश काउंटर में पैसे बराबर भरे जाते रहना। साहबा हैया अला सलाह हैया अला फलाह की आवाज सुनकर दुकान छोड़ देते थे, मकान छोड़ देते थे, अपने खेत बाड़ी छोड़ देते थे, मस्जिदों को आबाद करते थे। हम लोग सहाबा के नक्शे कदम को चलने वाले, खाली दावा करती मत, लेकिन हमें हैया अला सलाह सुन के, हैया अला फलाह सुन के नमाजों को छोड़ देते हैं दुनिया कमाने के लिए। सहाबा दुनिया छोड़ते थे नमाजों के लिए, हम लोग नमाजा छोड़ देते हैं दुनिया कमाने के लिए। फिर दावा क्या करती, हमें करेक्ट चल रही, साहबा के नक्शे कदम हो गए, वो कहीं के नक्शे कदम चल रही जी, वो कौन से नक्शे कदम पर चल रही? ऐसे थे साहबा, दुनिया छोड़ को नमाज खाते थे। हम लोग नमाजा छोड़ को दुनिया कमाने के पीछे पड़ी, ऐसे ही क्या हम लोग इसे बोलते हैं क्या साहबा के नक्शे कदम पर चलने वाले? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दुनिया परस्त इंसान, ये तो माल का हवस इंसान है। अल्लाह ताला ऐसे आदमी को पसंद नहीं करता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि बेशक एक दुनिया का ऐश परस्त इंसान, सबसे ज्यादा एंजॉय कराया हुआ इंसान को क़यामत के दिन अल्लाह लाएगा, फरिश्तों से कहेगा ले जाकर जहन्नम के आग के दरिया में गोता लगा के लाओ। डुबकी लगा को लाएंगे अंगार के अंदर। बहुत एंजॉय करया सोला, बहुत मौज मस्ती करया सोला, बहुत कारा में फिरया सोला, क्लब्बा में नाचा सोला, शराबा पिया सोला, जिना करया सोला, हर किस्म की अय्याशी फहाशी सारी दुनिया के लहव लईब से फायदा उठाए सोला। बुलाता जहन्नम के अंगार के दरिया में एक डुबकी लगाता, बाहर निकाल को अल्लाह सवाल करता, कैसा थी दुनिया, कितना करया एंजॉय, कितना नाचा, कितना मौज मस्ती करया, बोल। उन्हें क्या बोलता? जहन्नम की दरिया में एक डुबकी लगाते ही अल्लाह मौज किसे बोलती, मस्ती किसे बोलती, एंजॉय किसे बोलती जानता च नहीं। पैदा हो को होश संभालने से लेकर अब तक अजाब, तेरा दर्दनाक अजाब, जलन, दर्द, आए अल्लाह दुख, खाली यही मैंने देखा है। ऐश किसे बोलती मालूम ही नहीं मुझे। जहन्नम का एक गौता दुनिया की पूरी ऐश परस्ती को निकाल को सड़दा लिंगा। कहीं होना हम ना दुनिया, हाँ बीवी बच्चों के लिए होना, जरूरत के हद तक होना। मेरे भाइयों, ये दुनिया लोग समझती
दुनिया में कामयाबी की अलामत क्या? ये दुनिया में अच्छे ताकतवर बने तो कामयाब इंसान, और जिम को जाको ऐसी बॉडी करता, इतना मेहनत करता, वो नहीं उठाने की चीजें उठाता, नहीं खींचने की चीजें खींचता, हलाने की चीजें हलाता, यूं करने की चीजें क्या, हूं करने की चीजें क्या, बाबा यहाँ मोटे कटसां करको वो अच्छा गुड़ी बैल रहता नहीं, अच्छा सांड हुआ सर का मस्त बॉडी बनाने को बॉडी बिल्डर कहते नहीं, यूं चलने का था। क्या दुनिया में ताकत कामयाबी की अलामत है? अगर दुनिया ताकत की निशानी है, ताकत कामयाबी की अलामत है, तुम्हें क्या बॉडी बनेंगे? तुम्हारी बॉडी जाको बौड़ी भी हो जाए। अल्लाह बोलता अलम तरा कैफ फअला रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद। क्या तुमने कौम आद की जानिब नहीं देखा? क्या तुमने कौम समूद की जानिब नहीं देखा? अरे बड़े बड़े खंबे जैसे आदमी थे जीवनो, तुम्हें तो इतने चते 5 फीट 6 फीट के गिड्डे आदमी ही, 5 फीट 6 फीट 7 फीट के, उन्होंने लंबे लंबे 20-20 फीट 30-30 फीट बड़े लंबे खंबे किस्म के सुतूनों के जैसे। अल्लाह बोलता लम युखलक़ु मिस्लुहा फिल बिलाद। ऐसे हट्टे कट्टे ताकतवर लोगों को हमने जमीन पर किसी और को पैदा नहीं किया। क्या ताकत दुनिया में कामयाबी की अलामत? क्या अगर ताकत कामयाबी की अलामत होती, कौम आद कौम समूद बड़े बड़े लोग हमेशा दुनिया में राज करते, लेकिन अल्लाह बोलता तिनकों की तरह दुनिया में मिलियामेट करके हमने दुनिया से उनको खत्म कर दिया। तिनकों की तरह तूफानों में उड़ा के, हमारी चीखों से उनके पर्दे पाश करके, जमीनों को फाड़ के अंदर धसा के दुनिया से इबरत का निशान बना दिया। तुम्हें क्या जी बॉडी बनेंगे? तुम्हें क्या जी जरा जिम में जाको अकड़ेंगे? तुम्हें क्या जी अपने आप को फखर करेंगे? दुनिया ताकत की कामयाबी वाली नहीं है। ये ताकत, ये बड़ी कुव्वत, ये कामयाबी की अलामत नहीं है। अच्छा, दुनिया ओहदे की कामयाबी क्या? अगर ओहदा मनसब कामयाबी की निशानी है तो आज लोग सवाल कर कर को मांगते, मुझे जमात का बड़ा बनाओ, मुझे मस्जिद का मुतवल्ली बनाओ, मुझे गांव का अमीर बनाओ, मुझे तंजीम का बड़ा बनाओ। ओहदा मांग मांग को लेती। क्या ओहदा, तुम्हारा ये पोस्ट, तुम्हारा ये एमएलए, ये सीएम, ये पीएम, ये काउंसलर, ये दुनिया के ओहदे कामयाबी की अलामत क्या? अगर ये ओहदे कामयाबी की अलामत होती, अल्लाह बोलता क्या तुमने फिरौन की जानिब नहीं देखा? क्या तुमने नमरूद की जानिब नहीं देखा? अरे तुम्हें तो करनूल में बैठ को हुकूमत कर रहे होंगे, उन्होंने आधी दुनिया पर हुकूमत कर को गए वाले बड़े बड़े जालिमा जाबिरा बड़े बादशाह होना, कितनी बड़ी सल्तनत उनकी, कितनी बड़ी फौज उनकी, उनका ओहदा, उनकी हुकूमत, उनकी सल्तनत क्या अभी काम नहीं? दुनिया से मिलिया मेट कर को सत्यानाश कर दे अल्लाह। क़यामत के मैदान में एक दुनिया परस्त जहन्नमी इंसान को नाम अमाल पीठ के पीछे बाएं हाथ में अल्लाह थमाएगा। वो कहेगा हलका अन्नी सुल्तानिया मा अगना अन्नी मालिया। हाय मेरी बर्बादी, मेरा ओहदा, मेरा पोस्ट, मेरा बड़ी से बड़ी सल्तनत मेरे कुछ काम नहीं आई, मेरा माल मुझे काम नहीं आया। ओहदा दुनिया की कामयाबी की निशानी नहीं है, ताकत दुनिया की कामयाबी की निशानी। तो क्या दौलत कामयाबी की निशानी क्या? आज हम लोग दौलत कमाने के पीछे ता एनर्जी सर्व कर रही है, ता पीछे पड़ी दौलत होना, पैसा होना। क्या दौलत दुनिया में कामयाबी की निशानी क्या? अल्लाह बोलता क्या तुमने कारून की जानिब नहीं देखा? बहुत बड़े खजाने रखने वाला, उसके खजानों की चाबियां ऊंटों पर लाद कर ले जाता था उन्हें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ कारून, इस दौलत में गरीबों का, मोहताजों का, मिस्किनों का, बेवाओं का, राह चलते मुसाफिरों का हक है, उनका हक अदा कर। ऐ मूसा, ये मैं मेरे इल्म से, मेरी अक्ल से कमाया सो दौलत, इसमें तेरा भी हक नहीं, तेरे रब का भी हक नहीं, किसी गरीब का भी हक नहीं, किसी भी क्या भी देता नहीं, क्या करता कर ले जा। तकब्बुरी से अपनी चादर जमीन पर लिटाते हुए फखर से गया
बड़ी दौलत का मालिक, बड़े खजाने का मालिक। अल्लाह क्या करे? फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, जमीन के पर्दों को फाड़ कर उसके खजानों समेत कारून को जमीन में उतार दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं बुखारी की रिवायत में, एक आदमी चादर जमीन से लिटाए जा रहा था। अल्लाह के एक नबी ने उसे मना किया लेकिन उसने नहीं माना। अल्लाह ताला उसे जमीन में ऐसे धंसा दिया, वो उस जमाने में धंसा लेकिन आज तक धंस रहा है, कयामत की सुबह तक वो जमीन में धंसता रहेगा। मुहद्दिसीन इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि इससे मुराद कारून है। क्या दौलत कामयाबी की निशानी? क्या अगर दौलत कामयाबी की निशानी होती, कारून इस जमाने का बड़ा कामयाब इंसान होता। अल्लाह उसकी दौलत के साथ उतार डाला ना जी जमीन में, उसकी दौलत के साथ उतार डाला। दज्जाल जब कयामत के करीब आएगा, अल्लाह के नबी कहते जमीन के सारे खजाने अल्लाह बाहर निकालेगा और दज्जाल जहां जहां जाएगा शहद की मक्खियों की तरह जमीन के खजाने उसके पीछे पीछे जाएंगे। क्या उन्हें कामयाब हो जाएगा? क्या नहीं। अल्लाह ताला उससे उसकी पैरवी करने वालों को, उसके सामने जाकर उसकी जन्नत में जाने वालों को अल्लाह उठा जहन्नम में डालेंगे। दौलत, खजाने, माल, सोना, चांदी, हीरे, मोतियां दुनिया की कामयाबी की निशानी नहीं। अगर होती कारून बड़ा कामयाब होता, अल्लाह उसे इबरत का निशान बनाकर जमीन में उतार दिया। दौलत की हिरिस मत करो, यह दुनिया दौलत से कामयाबी की अलामत नहीं है। तो फिर कामयाबी की अलामत क्या? दुनिया में जीना रहे तो कामयाब होना क्या करना? हैंडसम बनना, चिकने बनना, कल्ला छिल लेना, दाढ़िया मुंडा लेना। मेरे भाइयों जाओ, अल्लाह के नबी कहते ऐ मेरे उम्मतियों, कब्रिस्तान की जियारत ज्यादा से ज्यादा करो, आखिरत की फिक्र तुम्हारे दिल में ज्यादा पैदा होगी। क्यों बोले अल्लाह के नबी? अगर खूबसूरती कामयाबी की अलामत है तो जाओ कब्रिस्तान में जाकर देखो, मिस वर्ल्ड पूरी दुनिया में हसीनाओं में सबसे खूबसूरत हसीनाओं का अवार्ड लेने वाली औरतें आज कब्रिस्तान में मर को पड़ी। खबर खोद को देखो, उनकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी आपको। अगर बांस की हड्डियां मिल भी गई, उन हड्डियों को देखना भी गवारा नहीं करेंगे आप। मिस वर्ल्ड मर गई, अरे मर गई तो छोड़ो, उन्हें जिंदा जब थी बूढ़ी हो गई, मेकअप की दुनिया से, ब्यूटी पार्लर की दुनिया से जब बाहर आई, बदन पर झुर्रियां आ गई, उसका मेकअप उतर गया, सर के बाल झड़ गए, मुंह में के दांत झड़ गए। दुनिया उसे देखकर जितना पसंद करती थी, उस पर जान छिड़कती, उसे नफरत उता करने लग गई। बड़े बड़े मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स खबरों में अपनी अंजाम को पाकर दुनिया का इबरत का निशान बने खोपड़ियां लेके पड़े हैं कब्रिस्तान में। खूबसूरती दुनिया में कामयाबी की निशानी नहीं है। आज नौजवान खूबसूरत बनने अपने चेहरे को मुंडा लेती, दाढ़ियां कटा लेती। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये मेरे अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, उम्मते मुहम्मदिया की अलामत है, मोमिनों की ये निशानी है। यहूद दाढ़ी मुंडाएंगे, मूछ बढ़ाएंगे, मोमिन दाढ़ी बढ़ाने वाले होंगे, मूछ कम करने वाले होंगे। ऐ अबू बकर के बाप अबू कहाफा, तेरी यह दाढ़ी कयामत के दिन नूर बनकर चमकेगी। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, अपने चेहरे बढ़ाओ, मोमिनों का चेहरा बनाओ, यहूदियों का चेहरा मत बनाओ। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं, तो पता यह चला खूबसूरत बनना दुनिया में कामयाबी की निशानी नहीं, दौलत कामयाबी की निशानी नहीं, ओहदा कामयाबी की निशानी नहीं, और दुनिया में बड़ी ताकत कामयाबी की निशानी नहीं। तो कामयाबी है क्या? कामयाबी है क्या? तौहीद के साथ, ईमान बिल्लाह के साथ अमले साले करके, अल्लाह को राजी करके जाने में, आखिरत की तमन्ना करके आखिरत कमाने में कामयाबी है, दुनिया कमाने में कामयाबी नहीं है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं, लौ कानति दुनिया तअदिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तन मा बका मिनहा। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं कि ये दुनिया
اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پینے کے لیے پانی بھی نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کافروں کو پینے کے لیے دے دیا پانی۔ کیا؟ دنیا کی عیش و مستیاں، دنیا کے تمام عیش و سامانیاں، سر و سامان، سارے لہو و لعب کی چیزیں اللہ دے دیا، مطلب یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں حیثیت والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت، ترمذی کی روایت، ایک مرتبہ نبی ایک راستے سے جا رہے ہیں، ایک بکری مری ہوئی پڑی ہے، نبی کہتے ہیں اے میرے صحابہ کیا تم اس بکری کو دباغت دے کر چمڑا اتارنا پسند کرو گے؟ اے اللہ کے نبی مر گئی، کتے اس کے کانا نوچ کو کھا لی، کیڑے پڑی، بدبری باس، اے اللہ کے نبی سے فری میں دیے تو بھی ہمیں لینا پسند نہیں کرتے۔ نبی کیا بولے؟ جتنی حقیر یہ بکری تمہاری نگاہ میں ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا اس بکری سے کئی زیادہ حقیر ہے۔ جس کے نشے میں تم پڑے ہو، جس کی ہوس میں تم پڑے ہو، یہ بکری سے کئی زیادہ کئی گزری ہے اللہ کی نگاہ میں دنیا، اس دنیا کے پیچھے ہم پڑے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث 2272 نمبر کی حدیث، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا مطلب؟ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانے کی مثال، قید خانے میں کوئی آدمی انجوائے نہیں کرتا، قید خانے میں کوئی آدمی اپنے ضروریات کے تحت حد سے زیادہ موج مستی نہیں کرتا۔ قید خانے میں ایک جیلر ہوتا، جیلر کے قانون کو فالو کرنا رہتا قیدی کو، جو جیلر بولتا اتنے بجے اٹھنا، یہ کام کرنا، یہ جگہ پر یہ ٹائم پر آنا، جیلر کے قانون کو فالو کرتا قیدی، اپنی خواہشات کا کھانا، اپنے من پسند کی گاڑیاں، اپنے من پسند کے بنگلے قید خانے میں کوئی قیدی نہیں بناتا۔ اللہ ہم مومنوں کی زندگی کو قیدیوں کی زندگی سے تشبیہ دیا، تم دنیا میں ایک قیدیوں کی طرح ہو، جس طرح قیدی ایک جیلر کا حکم کو فالو کرتا ہے۔ اے مومنوں، میرے بندوں، میری بندیوں، تم کو اس دنیا میں اللہ کے قانون کو فالو کرنا ہے۔ اگر اس دنیا میں اللہ کے حکموں پہ چلو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں جنت کی بہترین نعمت سے نوازے گا۔ کافر اپنی منمانی زندگی گزارتا، کیونکہ کافر کی جنت یہ دنیا، جیسا من میں آتا کرتا، جو چاہے پھرتا، جو چاہے اپنا آشیانہ، اپنا گھر، اپنی گاڑی، اپنے بنگلے سب کچھ بنا لیتا انہیں۔ کیوں؟ اللہ کافر کو سب کچھ دے ڈالا، جنت بنا ڈالا اس کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں سورہ احقاف کی 20 نمبر آیت میں، یوم یعرض الذین کفروا علی النار، جب کافروں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا، جہنم میں لایا جائے گا، کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا، اللہ نے تمہیں جینے کے لیے دنیا کی زندگی دے دیا تھا، تم دنیا میں جتنا موج مستی کرنا تھا سو کر لیے، واستمتعتم بها، اس دنیا سے تم فائدہ بھی اٹھا لیے، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دنیا میں جتنا تم کو دنیا دینا تھا اللہ دے دیا، اب آخرت میں اللہ تعالیٰ ذلت والا عذاب جہنم میں تمہیں رکھ دیا۔ کسے کہے گا؟ جو دنیا پرست کافر ہوں گے ان سے اللہ کہے گا، دنیا جینے کے لیے دے دیا تھا، جی لیے، اب ذلت کا عذاب چکو اس جہنم کے اندر۔ کافروں کو اللہ ذلت کا عذاب دے گا، جو دنیا پرست دنیا جی لیے، آخرت میں ذلت کا عذاب اللہ ان کے مقدر کر دے گا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام کر کے اٹھے، طبقات ابن سعد کی روایت، حضرت عمر بن خطاب آئے، دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے ہیں اور آپ کے بدن پر نشان پڑے، حسیر کے چٹائی کے نشان پڑے، رو پڑے عمر بن خطاب، بولے اللہ کے نبی یہ زندگی کیسی ہے آپ کی، غربت والی زندگی، آپ کے بدن پر پوری چٹائی کے نشان ہیں، اور خیسر و کسرا والے بڑے بڑے محلوں میں
सोने चांदी के खजानों में ऐश कर रहे हैं और आप चटाई पर लेटे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उमर, क्या तुम ये बात पसंद नहीं करते? अमा तरजा लकुम दुनिया वलनल आखिरा, क्या तुम ये बात पसंद नहीं करते? अल्लाह ताला उनको सब कुछ दुनिया में दे दिया और हमारे लिए हिस्सा आखिरत में अल्लाह रखा है। ऐ उमर, हम भले ही जिंदगी मिस्कीनियत से, गुर्बत से काट ले, आखिरत में हमारा असल ठिकाना है, आखिरत में अल्लाह के पास हमारे लिए सब कुछ है। और ये दुनिया परस्त नहीं जिनको अल्लाह दुनिया में सब कुछ दे दिया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ते, आपके पैरों में सूजन आ जाती, आप बेहोश होकर नीचे गिर पड़ते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, बोले ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह कहता है अगर आप हाँ कहे, खैसरो किसरा के खजाने अल्लाह तुम्हारे कदमों में डाल देगा। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी जब जिब्राइल के जबान से ये ऑफर सुने, सर सजदे में रख दिए और रोने लगे। बोले अल्लाह, मुझे सोने चांदी के खजाने नहीं चाहिए, जिस दिन तू देगा तेरा शुक्रिया अदा करके खाऊंगा, जिस दिन नहीं मिलेगा तुझसे गिड़गिड़ा के रोजी मांगूंगा, यही जिंदगी मेरे लिए काफी है, मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। नबी ने दुनिया के दौलत, हिरिस, माल की कभी तमन्ना, कभी दुआएं आपने जिंदगी में नहीं किया। आखिरत का सवाल आपने किया और नबी ने हमको सिखाया कुरान मजीद की दुआओं के जामे दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। हमको दुनिया भी अच्छी कर दे, आखिरत भी अच्छी कर दे, ऐ अल्लाह आखिरत के अजाब से हमें बचा ले। ये बेहतरीन जामे दुआ। इस दुआ में उतनी ही दुनिया अल्लाह आपको अता करेगा जितनी आपकी आखिरत संवर सके। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सुहेब रूमी से कहते हैं, कौन? सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के से जब हिजरत करके निकले, हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला ज़ुलबजादैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सहाबा जब मक्के से मदीने की जानिब हिजरत करके निकले, मक्के वाले पकड़ लिए, जे कहां जा रही जी, तुम्हें मदीने जा रही, जाओ, लेकिन ये जो दौलत की पुड़ी, ये दौलत की घंटी, ये पैसियां की घंटी, ये दीनार, ये दिरहम, ये सुन्ने चांदी के सिक्के हमारे मक्के की सरजमीन में कमाए सो, तुम्हें जाती खुशी से जाओ, हमें छोड़ डाल, लेकिन ये सोने चांदी के सिक्के, ये दीनार और दिरहम, ये दुनिया की दौलत हमारे हवाले करना पड़ेगा, वरना हम तुमको जाने नहीं देंगे। क्या सहाबा थे जी उन्हों? क्या बोले? ये क्या होना तुम ना, ये पैसे क्या होना, ले ये दौलत, जिंदगी भर की कमाई पूंजी। हजरत सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला ज़ुलबजादैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक झटके में बिला सोचे समझे दुनिया की कमाई की सारी पूंजी हवाले कर दिए, चले गए तने तनहा नबी के दरबार में। नबी ने जब इनकी हालत देखी, बदन के कपड़े, कीमती कपड़े तक निकाल लिए गए। हजरत अब्दुल्ला ज़ुलबजादैन एक माँ के पास एक चादर लिए, दो टुकड़े करे, ऊपर एक चादर का टुकड़ा, नीचे एक चादर का टुकड़ा, टाक लेने बबूल के कांटे से टाका मारने को गए, सारी दौलत दे डाले। अल्लाह के नबी सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछते हैं, ऐ सुहेब, ये क्या हालत तुमने बनाई है, क्या तुम बनाए हो? कौन सुहेब? मक्के के गलियों में एक मर्तबा इतर लगाकर गए तो बाद में आने वाला पहचान लेता था, इस गली से सुहेब गुजरा है। इतना कीमती इतर लगाने वाले, शाही लिबास पहनने वाले सुहेब रूमी, रूम से आने वाले, एक झटके में दुनिया की दौलत उठा दिए, गए मामूली कपड़े। अल्लाह के नबी पूछे, सुहेब क्या हालत तुम्हारी? बोले, अय अल्लाह के नबी, दुनिया की सारी दौलत कुर्बान करके आया हूं, ईमान की दौलत बचा के आया हूं, ईमान की दौलत लेके आया हूं, दुनिया की दौलत कुर्बान करके आया हूं। अल्लाह ताला ऐसे सहाबा के लिए कुरान की आयत नाजिल किया, सूरह बकरा 207 नंबर आयत। अल्लाह कहता, व मिनन नासी
من یشتری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رعوف بالعباد. بندوں میں بعض بندے ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے جان و مال کو قربان کر دیتے ہیں. اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان، بڑا ہی محبت کرنے والا ہے، بڑا ہی نرم اور بڑا مہربان ہے اللہ تعالی. وہ لوگ جو اپنی جانوں کے بدلے اللہ کی جنت کو خرید لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اللہ ان سے راضی ہوا دنیا لٹانے والے دین کی خاطر. آج ہمارے پاس بھی چندہ لینے والے بہار سے، یو پی سے، گجرات سے، مدھیہ پردیش، بنگال سے، اڑیسہ سے، دور دراز سے، شمال ہندوستان سے جنوب ہندوستان کو آتے ہیں چندہ لینے کے واسطے. ہم لوگ سنتا پڑے نسر کا بھاگ کو جاتی ہیں، کہاں چندہ دینا پڑتا ہے کہ تو دینے والے دیے تو بھی چھوٹے نوٹاں دیتے ہیں، 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے. جبکہ اللہ تم نا 2,000 کے پنک نوٹاں دے رہا، تمہیں چھوٹے چھوٹے نوٹاں دے رہی. کنجوسی کر لے کو اللہ کے راستے میں دنیا لٹانے میں کنجوسی نہ کرو. اللہ کے راستے میں اللہ کے دی ہوئی دولت کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے میں کنجوسی نہ کرو. ایک صحابی آئے حضرت جلبیب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ، انہوں بولے اللہ کے نبی شادی کرنا چاہتا ہوں. بولے کون ہے، کون تم سے نکاح کرے گی؟ اے اللہ کے نبی آپ ہی انتظام کیجئے، میں نے سنا ہے فلاں انصار کی بیٹی ہے، جاؤ اسے بولو میں نے رشتہ بھیجا ہے. گئے وہ صحابی سیدھا انصاری کے گھر آئے، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام پیش کیا ہے اور میرے نکاح کے پیغام کو آپ کی بیٹی کے لیے بھیجا ہے. اب کیسا دینا؟ انہوں غریب، میری بیٹی مالدار، میری بیٹی خوبصورت، انہوں اتنے خوبصورت نہیں، کیسا دینا؟ ذرا سوچنے لگے، کیا بھی نہیں بولے. جلبیب الانصاری جواب نہ ملنے پر واپس نکل پڑے. ٹھیک ہے میں چلے آتا ہوں. چلے گئے. اندر میاں بیوی ڈسکس کر رہی کیا کریں گے. نبی کا پیغام آیا تھا. بیٹی نے پوچھا ابا کون آیا تھا، کیا ہے؟ میری بیٹی تیرے لیے اللہ کے نبی نکاح کا پیغام بھیجے تھے. ابا تمہیں کیا بولے؟ نہیں بیٹی وہ تیرے لائق نہیں تھا، غریب تھا، کیسا دینا؟ میں ذرا سوچ میں پڑ گیا. ابا ایسا نہ کو بولو، جاؤ انہیں خوبصورت رہندے، بدصورت رہندے، مالدار رہندے، غریب رہندے، لنگڑا رہندے، للہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے، اے میرے ابا اس زمین پر اگر اللہ کے نبی نے میرے لیے نکاح کے پیغام کو طے کیا ہے، قسم میرے اللہ کی اس پیغام سے بہتر والا نکاح کا رشتہ کوئی دوسرا میرے لیے نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی میرے لیے منتخب کریم بولے تو اس زمین کا سب سے بہترین رشتہ ہو، وہ جیسا بھی ہے مجھے منظور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہم کرنا نہیں چاہتے، آپ ہاں کہہ دیجئے، اللہ اسی میں مجھے برکت دیتا. گئے وہ صحابی کون؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو دردہ نہیں، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور نبی علیہ السلام سے بولے اللہ کے نبی میری بچی کا نکاح فلاں جلبیب الانصاری صحابی سے کرنے تیار ہو. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ یہ بچی صرف میرے بھیجنے کی وجہ سے پیغام کو ہاں بولی ہے. پھر نبی علیہ السلام نکاح پڑھائے، برکت کی دعا پڑھے. اللہم، اللہ کے نبی دعا کرتے اللہم اصب علیہ الخیر صبا، اے میرے پروردگار اس کی زندگی میں تمام بھلائیوں کو جمع کر دے. ولا تجعل عیشہا کدا، اے اللہ اس کی زندگی میں کبھی فخر و فاقہ کو اس کا چہرہ نہ بتا، فخر و فاقہ کی صورت اسے کبھی مت دکھا. اللہ ساری زندگی کی خیر بھلائیاں اس کی زندگی میں جمع کر دے. یہ دعا نبی کائنات، نبی رحمت للعالمین اس صحابیات کی، اس صحابی کی دعا پڑھ کے نکاح کر دیے. نبی کی دعا پانے کے بعد حضرت جلبیب الانصاری کی زندگی میں اتنی برکت، اتنی برکت، اللہ اکبر. چند سالوں میں سارے انصاری گھرانوں میں جلبیب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا مالدار گھرانہ پورے مدینے میں کوئی دوسرا نہیں تھا. اتنی اللہ دولت سے مالا مال کر دیا، اتنی زندگی میں فراوانی اللہ پیدا کر دیا.
कभी भी जिंदगी में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के दीन और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और आखिरत को तरजीह देने वाले दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, दुनिया एक ऐसी चीज है, दुनिया को अपने जेब में रखने की कोशिश करो, दुनिया को अपने दिल में बसाने की कोशिश मत करो। दुनिया कमाओ, लेकिन दुनिया को अपने सामने झुकाने की कोशिश करो। दुनिया के सामने तुम्हें झुको सिलेंडर हरगिज हरगिज मत हो जाओ। यह दुनिया जरूरत की चीज है, यह दुनिया हमारा मकसद नहीं है। राह चलते मुसाफिर की तरह जरूरत की चीज है, हमारा मकसद मंजिल नहीं है। इस दुनिया को मुसाफिर की तरह सफर का सामान बनाओ, लेकिन इसे मंजिल मकसूद मत बनाओ। हमारी मंजिल मकसूद जन्नत है, जन्नत को मंजिल मकसूद बनाओ। यह दुनिया जरूरत है, इसे जरूरत के हद तक बाकी रखो, इसे अपनी जिंदगी का असल मकसद मत बनाओ। मेरे भाइयों, एक मालदार, अल्लाह ताला कुरान में सूरह यूनुस की 24वीं आयत में कहता है, इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमसलि अंज़लनाहु मिनस समाई फख्तलत लहू नबातुल अर्दी। अल्लाह ताला कहता है, ये दुनिया की मिसाल बारिश की तरह है। जब दुनिया में हम बारिश को उतारते हैं, जमीन से हरियाली उगाती है, जिसे जानवर और जिसे चौपाए जानवर खा लेते हैं, और भी बारिश उतरती है, दुनिया हरी भरी हो जाती है। और जब दुनिया वाले देखते हैं इतनी खूबसूरत दुनिया, हरे भरे बागात, फूल पत्तियां, बाग, सारे बगीचे, दुनिया वाले सोचते हैं इतनी खूबसूरत दुनिया हमारी है और इसे कब्जा करना चाहते हैं। दुनिया वाले इसे कब्जा करना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, फिर हमारा हुक्म आ जाता है, दिन में रात में हमारा हुक्म आ जाता है, और दिन और रात में आकर सारी दुनिया को मिलियामेट करके रख देता है, सारी दुनिया को खत्म करके रख देता है। अल्लाह ताला कहता है, कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अकल रखने वालों के लिए, गौर व फिक्र करने वालों के लिए हम इसी तरह अपनी निशानियां खोल खोल के बयान करते हैं। क्या मतलब? सूरह यूनुस आयत नंबर 24 नंबर आयत, अल्लाह बोल रहा बारिश उतारे, जमीन से हरियाली होगी, जानवर खा लिए, और फूल पौधे पत्तियां हरिये बाग, जमीन वाले देखती इतनी खूबसूरत दुनिया, कब्जा जमाने जाते, अल्लाह दुनिया को सत्यानाश करके रख देता। किसी के हाथ नहीं आती है दुनिया। अल्लाह ताला अपना हुक्म रात में भी भेजता, दिन में भी भेजता, दुनिया सत्यानाश हो जाती। अल्लाह ताला इबरत पेश कर रहा, निशानियां पेश कर रहा, मिसाल पेश कर रहा इस दुनिया की। क्या मतलब? एक आदमी सारी दुनिया में मेहनत करके, खून पसीना एक करके, रात दिन एक करके बड़ी बिल्डिंग बनाता, बड़े बंगले जैसी बिल्डिंग बनाता, अभी घर की ओपनिंग करता भी नहीं, मर को चले आता। अभी घर में एंट्री भी करे रहता नहीं, रिबिन भी काटे रहता नहीं, अल्लाह इसकी दुम काट डालता दुनिया से। घर आबाद करने से पहले इसकी खबर आबाद हो जाती। पूरी दुनिया मेहनत करे, बिल्डिंग बनाया, इंजीनियरों को बुलाया, सामने से ये डिजाइन आना, पीछे से वो डिजाइन आना, इधर वो रहना, इधर ये रहना, उधर बालकनी रहना, इधर वो रहना। अब पेंटिंग चॉइस करने के लिए घर वाले को बिठा को ये कलर डालत कैसा रहता, वो कलर यहाँ थिगला लगायत कैसा रहता, पीछे से ये कलर, सामने से वो कलर, आगे से ऐसा, पीछे से ऐसा, क्या बिठा को इंजीनियरिंग प्लान डालिया। टाइल्सां के वास्ते पूरे घरा वालों को बिठा सिर खा को भेजा खाली कर डालिया। टाइल्सां के वास्ते अलग प्लानिंग, पेंटिंग के वास्ते अलग प्लानिंग, फैना के वास्ते अलग करया। ओपनिंग की बत्ती अभी पत्ती कट करने से पहले लटक का तो मर को चले गया। खबर में जाको मट्ठी दाल को क्या बोल रहा, उधर घर आबाद होने से पहले इसकी खबर आबाद हो गई। इसे बोलती सो दुनिया किसी से वफा नहीं करती, दुनिया किसी से वफा नहीं करती। एक आदमी गाड़ी खरीदता जाको बैंक में पैसा पे कर को ले लेका था। बाज़ आदमी कैश में लेती, बाज़ आदमी कंता में लेती। कंता भरते कंता का तो बड्डी, तेलुगु में
वड्डी वड्डी भनते भनते बड्डी भनते भनते हजरत की चड्डी ढीली पड़ जाती, लेकिन बड्डी नहीं फिरती। खैर, कैसा की खर्चा कर को, कमा कमा को, मुसीबत उठा को, पैसे झटा को, गाड़ी ला को घर के सामने खड़ती। अभी गाड़ी में जाग बैठ को, गाड़ी स्टार्ट भी करे रहता नहीं, इसकी गाड़ी फेल हो जाती, मर को चले जाता। खबर का जनाजा आता, इसे गाड़ी ले जाने, लोग मस्जिद से जनाजे का डोला ले लेकर आती, तू कहीं करे गाड़ी लेता, तेरी गाड़ी अल्लाह भेज डाला, चल सो जा इसमें। 4 जने कंधे पर ढोले, उसकी गाड़ी यहां रवाना होती। गाड़ी खरीदा, कंता भरया, दुनिया की मेहनत करया, अभी उसकी गाड़ी में बैठ को सफर भी नहीं करया, अल्लाह इसका सफर आखिरत का शुरू कर डाला। मर को चले गया, बेटों को पढ़ाया, पैदा करया, पाल्या, बड़े करया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, डबल डिग्री पढ़ाया, लंदन को भेज को पढ़ाया, अमेरिका को भेज को पढ़ाया, इतना पढ़ाया, दुनिया खर्चा कर डाला। जब बेटा डिग्रियां कर को सिर के ऊपर लंबी चौड़ी छतरी सर की टोपी रख ले को, डिग्री का बड़ा ये ले को डॉक्टरियत ले ले आया, अभी बेटा कमा को 1 महीने की सैलरी भी नहीं लाया, बाप को हार्ट अटैक को मर को चले गया। क्या करेंगा, क्या करेंगा? अल्लाह अकबर। अरे बेटे को उस लायक बनाने के वास्ते दुनिया खर्चा कर डाला, दुनिया कुर्बान कर डाला, लेकिन बेटे की 1 महीने की कमाई भी खाया नहीं, जाको खबर में सो गया। ये मिसालें हैं, ये हकीकत वाली मिसालें हैं। घर बनाता, घर में कदम रखता नहीं, इसकी घर बन जाती। गाड़ी खरीदता, गाड़ी में बैठता नहीं, इसकी गाड़ी आखिरत की रवाना हो जाए। बेटों को पढ़ाता, इंजीनियर बनाता, नौकरी वाला बनाता, 1 महीने की सैलरी भी खाता नहीं, जाको खबर में सो जा। ये दुनिया है, दुनिया। ये दुनिया किसी से वफा नहीं करती। कब दुनिया में मौत का पैगाम आता मालूम नहीं। हमेशा एक मोमिन को चाहिए कि वो आखिरत के लिए तैयार रहे, आखिरत की तैयारी करे, आखिरत की हिरिस करे, दुनिया की हिरिस कभी ना करे। मेरे भाइयों, ये दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशी करने वालों की, अगर दुनिया पूरे वर्ल्ड की हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ जो कंपनी है पूरी दुनिया की, उन्होंने दुनिया में सर्च करके देखे कि सबसे ज्यादा खुदकुशी कौन करती। पता यह चला दुनिया के सबसे बड़े बड़े मालदारा खुदकुशी करती, गरीबा नहीं करते, मालदारा करती। फिल्म इंडस्ट्री में देखो, फला हीरोइनी कहते शूटिंग करने के वास्ते सेट पर थी, फांसी डालने को मेकअप बॉक्स रूम में वो गाड़ी में फांसी डालने मर गए। फला हीरो कहते कितना हैंडसम था, दुनिया मरती थी, उन्हें जहर खा ले मर गए। फला हीरो नहीं कहते ऊपर से कूद को क्या कि उन्हें मर गई। ये हुए 4 मिसाला। दुनिया में देखो कितने बड़ा करोड़ों के कमाया कहते, क्या कि उधार था कहते, बैंक को क्या कि कर्जा पे करना था, नहीं भर सका, नुकसान हो गया, जहर पी लिया, मर को गया। अक्सर दुनिया में खुदकुशी कर को मरने वाले मालदार गरीब नम्मे। कभी दुनिया के दौलत की हिरिस नको करो, ये दौलत हैबत का कुंडा बना डालती तुम ना। गरीबी सुकून की जिंदगी अता करती, गरीबी सुकून की जिंदगी देती, टेंशन नहीं सो जिंदगी, गुर्बत की जिंदगी। जत्ती दौलत आती वत्ती टेंशन आती, जत्ता दौलत जत्ते पैसे आती वत्ती हैबत आ जाती। इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, अगर तुम सुकून देखना चाहते हो गरीबों के मकान में देखो, रोटी चटनी खा को खर्राटे की नींद आराम से सो जाता है गरीब। मालदार, बड़ा मालदार कहते क्या स्वीट स्टाइल है, शुगर है, एक भी मिठा मुंह में नहीं रख सकता कहते। बीपी है, पकोड़ा नहीं खा सकता, समोसे नहीं खा सकता, बीपी बढ़ जाती। बड़ा मालदार कहते, कट्टे कट्टे पैसे है कहते, ना खारा चख सकता ना मीठा चख सकता, क्या खाना, फिक्का फिक्का निगलते रहो ना, गंजी बनाते रहो ना निगल। अरे तेरे उतना बड़ा फकीर कौन भी नहीं रहे दुनिया में। बड़ा मालदार कहते तो तेरे बड़े पैसे कहते, चक्का पर लिख को यू सिग्नेचर करा तो करोड़ों के लाखों के कहते, लेकिन पेट के वास्ते मुंह के वास्ते ना मिठा ना खट्टा, फिक्का फिक्का। अरे तेरे तो बड़ा गरीब कौन भी नहीं भाई, मालदार कौन मालूम, गरीब। कभी मिला मीठा भी खाता, खट्टा भी खाता, खारा भी खाता, बिरयानी भी खाता, रोटी भी खाता, चटनी भी खाता, टेंशन नहीं सर का, खर्राटे की नींद मार ले भर्रगा सोता। इसे इतना बड़ा मालदार कहते, इतना बड़ा करोड़पति कहते, नींद ही चाहती नहीं, टेंशन। नींद के गोलियां खाए तक नींद ही चाहती नहीं इसे, नींद के गोलियां खाए तो नींद आती है, वरना फोन इतनी आती, सर तुम्हारी गाड़ी वहां पकड़े जा छोड़ी सर, चेक पोस्ट में अच्छा ना पाले, 4 लाख का माल सपड़ गया, हट
गत पकड़े छोड़ता ही नहीं, क्या करना रे, कैसा करना रे, ऐसा कर बोल। अल्लाह अकबर, क्या करती जी दुनिया, क्या करती जी दुनिया। और ये दुनिया का सबसे खतरनाक नौजवानों का नशा मोबाइल। मोबाइल ऐसी जरूरत की चीज बन गई, ऐसी जरूरत की चीज बन गई, जोरू नहीं तो चलता, मोबाइल रहना, मोबाइल रहना। अचानक कान तो भी आते आते मोबाइल बिसर ले आता, मोबाइल कान तो भी रख को बिसर ले आता, और बैठे बैठे क्या करता, है, तो ऐसा करता देखने वाले, अब हार्ट अटैक मर को जाता का नहीं, अभी इन्हें गिरता, लाश गिरती इसकी कहना, है, क्या हुआ बा, कहीं कैसा कर रहा रे, मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल। जरा सबर से, जरा निदान से, क्या भी होता नहीं, 10,000 का सैमसंग फिर दिया तो फिर आता, फिर तेरा आईडी, वो तेरा जीमेल आईडी क्रिएट करे, पूरा डाटा हुआ, कहीं है बात कहीं खा रहा, ऐसा करता, यूं करता, हार्ट अटैक मर को जाता का ना। ये दुनिया का नशा, ये दुनिया की रंग रंगेलियां, यूट्यूब, गूगल। जोरू कान तो बस स्टैंड में बैठी गत आ जागे, अरे वहां आना देख, एड्रेस बोल तो ऑटो लिख दे। जोरू छोड़ा तो भी जरा निदान से, मोबाइल छोड़ा तसल्ली से रहता नहीं, हैबत लग जाती। अल्लाह अकबर। वैसे किसी भी चीज को इतनी जरूरत नको बनाओ जिसके बिना तुम नहीं जी सकते, ऐसी जरूरतिश नको बनाओ। कब से आया जी फोन है? 2004 से आया, 2014 से आया। छोटे फोन आते 2004, बड़े फोन 2014। उसके बाद ही ना हमें एंड्रॉइड फोन देखे। उससे पहले क्या थी? मोबाइल थे, जरूरत थी हम ना। आज इतनी बड़ी जरूरत, दुनिया की ऐश और इशरत क्या अय्याशी का ठिकाना बना लिए मोबाइल को। नौजवानों, अपनी दुनिया गारत नको करो। अल्लाह के नबी कहते हैं तुम्हारी आंखें जिना करती हैं, तुम्हारे कान जिना करते हैं, तुम्हारे हाथ जिना करते हैं, तुम्हारे पैर जिना करते हैं। आंखों का जिना मोबाइल में गंदी चीजों का देखना, कानों का जिना लड़कियों से चैटिंग और बातें करना, उंगलियों का जिना चैटिंग करना, वेबसाइट ओपन करना, पैरों का जिना की जानिब चलकर जाना। आज नौजवान तबाह बर्बाद है मोबाइल के फितने की वजह से। अल्लाह की पनाह, दुनिया के फितने से बचो। अल्लाह के नबी ने कहा हर उम्मत की एक चीज से अल्लाह आजमाया, मेरी उम्मत की आजमाइश 2 चीजों में रखा, माल का फितना, औरतों का फितना। फत्तकुन निसा वत्तकुद दुनिया, माल के फितने से बचो, औरतों के फितने से बचो। ये दुनिया आजमाता उम्मत मोहम्मदिया को 2 चीजों से अल्लाह ताला। इतना ही नहीं मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला सूरह शूरा की 27 नंबर आयत में कहता है वलो बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्द। अगर मैं अपने बंदों को रिज़्क़, दौलत, माल कुशादा करके लुटा दूं तो अल्लाह बोलता मेरे पूरे बंदे सरकशी करने वाले बन जाएंगे, सरकशी करने वाले बन जाएंगे, बगावत पे उतर जाएंगे, फितने फसादों में मुब्तला हो जाएंगे। तो फिर अल्लाह क्या करता? अल्लाह तबारक व तआला बंदों को वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा, अल्लाह अपने हैसियत के मुताबिक किसे कितना देना, अल्लाह उसकी हैसियत के मुताबिक अल्लाह वत्ताज देता। कब कितना दौलत देना, कब कितना माल देना, वत्ताज अल्लाह देता। अल्लाह बोलता मैं चाहूं रिज़्क़, दौलत के अंबार लुटा सकता हूं मेरे बंदों पे, लेकिन तुम सब लोग दुनिया के फितनों में, फसाद में मुब्तला हो जाओ। मैं नहीं चाहता तुम फितने में पड़ो, तुम्हारी हैसियत के मुताबिक मैं रिज़्क़ तुमको थोड़ा थोड़ा देता हूं। दुनिया के दौलतों में सुकून नहीं है, अल्लाह के जिक्र, इबादत में सुकून। अल्लाह बोलता अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से तुम्हारे दिलों का इत्मीनान है, तुम्हारे दिलों का सुकून है। अल्लाह के नबी जनाजे की नमाज में जो दुआ हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट में एक जुमला अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु वला तफ्तिना बादा। क्या माना? ऐ अल्लाह, जो हम पर से फौत हो गए उनके अजर से हमें महरूम ना कर, और जो हमसे खो गया ऐ अल्लाह उससे हमको गुमराह ना कर। ये उस दुआ का तर्जुमा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी बोलती दुनिया, दुनिया, इब्ने आदम क्या खाया, वो क्या पहना, क्या ओढ़ा, क्या बनाया, यही उसकी दुनिया। माली माली माली, इब्ने आदम बोलता मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल। अरे क्या रे तेरा माल? खाया सो गवाया, पहना सो खो डाला, तेरी दुनिया जमा करा, सब फना। लेकिन जो तेरी दुनिया है, जो तेरी दुनिया अल्लाह मुकद्दर की दे डाला। अल्लाह बोलता, अल्लाह के नबी अल्हाकुमुत तकासुर की तिलावत कर, तिरमिजी की हदीस है, तिलावत करते हुए बोलती
ابن آدم کو ایک وادی بھر کو سننا اللہ دیا تو انہیں تمنا کرتا کرتے اور ایک وادی بھر کو اللہ مجھے سننا دے دے. خبر میں ڈال کو منہ پہ مٹھی مارے تک اس کی ہرس ختم نہیں ہوتی. اے میرے بھائیو، کبھی دنیا کی ہرس مت کرو، کبھی مال کی ہرس نہ کرو، آخرت کی ہرس کرو، جنت کی ہرس کرو. بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دنیا میں آخرت میں ایمان والی زندگی، عزت والی زندگی، سکون والی زندگی، برکت والی زندگی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دنیا میں ضرورت کے حد تک دنیا حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم کو جنت کی ہرس کر کے ہوئے جنت کو حاصل کرنے جیسے نیک اعمال تیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.